Hello guys, how are you all? This is welcome to session number 5 for logarithms. This is me, your Vedantu master teacher Arvind Suthar. I'm a pass out of IIT Roorkee, and I hope the lessons which I have taken so far, I have been able to clear your concepts, right? One more thing which I want to say today is that we will be covering the graph of logarithms as well, but not in this series, in another topic under the bridge course itself, right? So that particular thing will also be covered. Today I'll be taking the questions that on the concepts that we have covered under the topic logarithms, right? I'm having some infection in my wisdom tooth. I hope I'll be able to explain you the way I used to. Kindly bear with me if the voice doesn't come clear, right? I hope you guys will pay more attention today and get the maximum out of this session, right? Thank you so much. So let's start for question number 1 for today, right? Example number 1. We need to solve for x for this expression, right? How we will proceed? Step number 1, we will find for what values of x our expression is defined, right? I hope you guys are clear with this. Step number 1 is for what values of x our expression is defined. For this logarithm to be defined, this value, right? This value right over here should be positive. That means 3x plus 1 should be greater than 0. That means x should be greater than minus 1 by 3, right? है ना? For this logarithm to define, जो भी value यहाँ पे लिखा हुआ है, that should be positive. That means 2x square plus 3 should be greater than 0. Now we know that this 2x square is always positive, because square अगर हम किसी भी number का करें, whether positive or negative, वो expression positive आएगा, right? And this is already positive, so this expression is always positive. लेकिन what we came to know from these two expressions is that whatever value of x जो कि हमारा solution होगा, that will be greater than minus 1 by 3 only, because first both of these expressions will be defined, then only we will look solutions for this particular equation, है ना? First these expressions need to be defined, right? Clear? आगे बढ़ते हैं, है ना? तो why I am saying this thing कि let's say आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, a का वैल्यू -3, राइट? ए ऑप्शन दिया हुआ है x इक्वल टू -3, तो ये तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दोगे आप, रिजेक्ट कर दोगे. क्यों? क्योंकि मुझे डोमेन यानी कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, वहां से पता चल गया कि जो भी मेरा आंसर आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन -1 by 3 ओनली, राइट? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट चीज देखते हैं. अब मुझे 2 लॉगरिथम्स दिए हुए, दोनों के बीच में प्लस लिखा हुआ है, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज आती है यार, log a to the base p plus log b to the base p is equal to, मैं क्या लिख सकता हूं इस चीज को? प्रॉपर्टी पढ़ी है मैंने. I can multiply both of these logarithms, right? Both of these values, that is a into b to the same base p, है ना? लेकिन बेस सेम होना चाहिए. जहां बेस सेम नहीं होता है, we make the base same somehow, थोड़ा मैनिपुलेशंस करके. तो क्या हम यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं? तो आई थिंक कर सकते हैं, राइट गाइस? कैसे करें? I can write this expression as this 1 by 2 को ये लिख दिया प्लस log of 2x square plus 3 to the base 2 is equal to 0, है ना? लिख सकते हैं. आगे बढ़ते हैं, है ना? तो I can take this power from here, और मैं यहाँ पे आगे डिनोमिनेटर में इसको ला सकता हूं. प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैंने, है ना? प्रॉपर्टी बताई थी मैंने. जिसको याद नहीं है, गो टू द प्रीवियस सेशंस, आपको समझ में आ जाएगा, राइट? आगे बढ़ते हैं. तो ये -1 अगर डिनोमिनेटर में चले गया इसके आगे, तो दिस विल बी माइनस लॉगरिथम 3x plus 1 to the base 2 प्लस लॉगरिथम ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3 to the base 2 is equal to 0, है ना? अगेन अच्छा, ये प्लस वाली प्रॉपर्टी तो लगी नहीं, लेकिन माइनस आ रहा है.
माइनस आ रहा है तो ये a बाय b हो जाएगा इस जगह। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता था तो यहाँ पे a बाय b हो जाता था, राइट। प्रॉपर्टी याद है कि नहीं है गाइस? आई होप आपको याद है। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे प्लस इसके साथ है और माइनस इसके साथ है, दैट मीन्स न्यूमरेटर में इसको लिख दूं और डिनोमिनेटर में इसको लिख दूं, राइट। तो ये मेरा a हो जाएगा और ये मेरा b हो जाएगा, इजंट इट? क्लियर है? तो आई कैन रीराइट दिस एक्सप्रेशन एज 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन दिस टू द बेस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। आई कैन रीराइट दिस थिंग एज 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0 और 2 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 विच इज अगेन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना हमें आता है, राइट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला क्या होता है रूट्स का? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है ना। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो मुझे a कितना मिल जाएगा? a मिल जाएगा 2 जो कि x स्क्वायर के आगे लिखा हुआ है, b कितना हो जाएगा? माइनस 3 है ना जो कि x के आगे लिखा हुआ है, और c कितना हो जाएगा? 2, राइट। अलजेब्रिकली साइन के साथ उठाएंगे उसको, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं इस इक्वेशन का कितना आ रहा है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है गाइस? माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव। और जब भी हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं अब तक, तो हम किसकी बात करते हैं? रियल सॉल्यूशंस की। और अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, दैट मींस दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, सो आवर आंसर इज नो रियल सॉल्यूशन, है ना, नो रियल सॉल्यूशन। आई होप you guys are clear with the concept just which I just discussed, right? Moving on to next thing, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2, व्हाट्स दैट? देखते हैं ध्यान से। लॉगरिथम ऑफ मॉड x टू द बेस 4 माइनस लॉग ऑफ रूट x टू द बेस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप, फिर से आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या? ये फंक्शन, ये जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं दैट शुड बी डिफाइंड, राइट। दैट मीन्स कि ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ पे जो वैल्यू बेस वाला जो वैल्यू है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट? 1 नहीं होना चाहिए। गाइस क्लियर है ना। अच्छा, ये 2 बार्स मैंने बताया था कि दिस रिप्रेजेंट्स मॉड्यूलस, राइट। तो मॉड x शुड बी ग्रेटर देन 0, मॉड्यूलस को मॉड भी बोलते हैं, राइट। तो मॉड x शुड बी ग्रेटर देन 0। मॉड x के बारे में मैंने, मॉड्यूलस के बारे में मैंने क्या बताया था? दिस इज अ मशीन इन विच हम कोई भी नंबर डालेंगे तो वो हमें आउटपुट पॉजिटिव ही देगा, राइट। कैसे? जैसे मान लो मैंने -4 को इस मॉड्यूलस के अंदर डाल दिया तो मुझे आउटपुट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो -4 का पॉजिटिव कितना हो जाएगा? 4, राइट। तो कुछ भी डालो इसके अंदर ये पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव डाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, जब 0 डाला तो 0 रहेगा, राइट। अच्छा, लेकिन मुझे पता है कि ये एक्सप्रेशन मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, तो मुझे अभी अभी मैंने बताया कि जब ये 0 डाला मैंने तब तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। तो मैं अगर कोई भी रियल नंबर डालू इसके अंदर एक्सेप्ट 0, x का वैल्यू अगर मैंने मॉड्यूलस के अंदर कोई भी वैल्यू डाला एक्सेप्ट 0, कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो मुझे आउटपुट पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स कि ये वाला मेरा एक्सप्रेशन कब डिफाइंड होगा? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट 0, इजंट इट? आपको ये चीज पता चल गई। अच्छा, दूसरे की बात करते हैं, रूट x। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था गाइस? कि रूट x का आउटपुट, रूट का आउटपुट, रूट लगा हुआ है, लेट्स से √4, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा, राइट। ये रूट x इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमको इतना तो समझ में आ गया। लेकिन अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमने, पिछला क्वेश्चन क्या किया था कि अंडर रूट के अंदर कभी भी अगर हम नेगेटिव वैल्यू डालते हैं
नेगेटिव वैल्यू अगर डालते हैं तो वो एक्सप्रेशन रियल नहीं बचता, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता है तो रूट्स रियल नहीं आते। दैट मींस कि अगर इस एक्सप्रेशन को रियल आना है तो x शुड बी पॉजिटिव, x शुड बी पॉजिटिव, राइट। यानी कि अगर रूट के अंदर मैंने कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर डाला तो मुझे आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, राइट। क्लियर है। तो ये एक्सप्रेशन के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस इज डिफाइंड फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, राइट। अच्छा, मैं बोल रहा हूं कि पॉजिटिव रियल नंबर जीरो के लिए डिफाइंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जीरो अगर मैंने डाला तो रूट ऑफ जीरो जीरो आ जाएगा और लॉगरिथम ऑफ जीरो टू द एनी बेस इज अनडिफाइंड गाइस। तो हमको यहां से ये पता चल गया कि ये दोनों एक्सप्रेशंस डिफाइंड कब कब होंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा एक्स का, वो क्या होना चाहिए, इन दोनों का कॉमन पॉइंट, इन दोनों एक्सप्रेशंस में जो आ रहे हैं, जो भी वैल्यूज डिफाइन हो रहे हैं, पहले तो एक्सप्रेशन डिफाइन होगा तभी तो मैं उसके सॉल्यूशन की बात करूंगा, राइट। ये दोनों एक्सप्रेशंस एक्स की किन किन वैल्यूज के लिए डिफाइन होंगे, एक्स की पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए ही डिफाइन होंगे, राइट। ये पहला वाला एक्सप्रेशन तो नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए भी डिफाइन है, लेकिन दूसरा वाला इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स ओनली, इसीलिए, राइट। आगे बढ़े। अच्छा, एक और चीज मैं आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर। अगर मैंने लेट्स से मॉड एक्स का स्क्वायर कर दिया, मैंने मॉड एक्स का स्क्वायर कर दिया, राइट। मुझे पता है कि मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। मॉड एक्स तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। जब जीरो डालेंगे तो मॉड एक्स जीरो हो जाएगा, राइट। एक्स का वैल्यू जब मैं जीरो डालूंगा तो मॉड ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा। बाकी भले ही मैं एक्स की जगह भले ही पॉजिटिव नंबर डालूं, नेगेटिव नंबर डालूं, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, है ना। तो मुझे पता चल गया कि मॉड ऑफ एक्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। तो क्या मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस, राइट, है ना। देखते हैं इसको। अगर मैंने लेट्स से पॉजिटिव वैल्यू डाला तो 4, जैसे मैंने 4 डाला तो मॉड ऑफ 4 का स्क्वायर करना है। मॉड ऑफ 4 कितना होगा, मॉड के अंदर आपने 4 डाला तो आउटपुट 4 ही आएगा, दैट मींस ये 4 स्क्वायर होगा, राइट। अगर आपने नेगेटिव वैल्यू डाल दिया लेट्स से -3 का मॉड करोगे आप तो -3 का मॉड कितना हो जाएगा, 3 यार, और उसका स्क्वायर करना है आपको, राइट। तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है। आगे बढ़े, है ना। ये छोटी छोटी चीजें आई एम मेकिंग यू गाइज लर्न, ताकि हम इनका यूज करेंगे धीरे धीरे, राइट। मॉड्यूलस भी हम पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, लेकिन दोज हु आर इन क्लास, हु हैव जस्ट अपीयर्ड फॉर क्लास 10th एग्जामिनेशंस, आई होप दे आर ग्रेस्पिंग कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम हियर। धीरे धीरे एक एक चीज लेके जाएंगे तो फाइनली जाके फोड़ देंगे हर चीज को, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर विद यू गाइस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। तो प्रॉपर्टी लगाने का समय आ गया गाइस, बेस सेम है, दो लॉगरिथम्स में बीच में माइनस लिखा हुआ है, तो क्या करें, पहले वाले को दूसरे से डिवाइड कर दें और यहां लिख दें, राइट, टू द सेम बेस 4, है ना। अच्छा, इस चीज को सॉल्व कैसे करें, मॉड ऑफ x अपॉन रूट x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 0, और 4 टू द पावर 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना। अच्छा, तो ये कितना आ गया, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू रूट x, राइट, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू रूट x। अच्छा, ध्यान रहेगा इस कि दोनों ही एक्सप्रेशंस मेरे पॉजिटिव हैं, तो अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना, दोनों ही एक्सप्रेशंस पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट आई गेट, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यही आ जाएगा, है ना। और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं अभी देख के आया हूं कि आई कैन राइट एज, क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर, तो दैट मींस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। एक्स से एक्स काट दें, एक्स से एक्स काट दें, नहीं काटेंगे गाइस, क्यों नहीं काटेंगे, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। जस्ट टेक दिस एक्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, बताऊंगा उस चीज को कि वैसे क्यों नहीं करना है, क्यों एक्स से एक्स को नहीं काटना है, राइट। तो
x आप कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी दो चीजें लिखी हुई है, एक तो ये x लिखा हुआ है और ये x माइनस 1 लिखा हुआ है, उनका प्रोडक्ट मुझे 0 करवाना है, राइट। तो क्या हो सकता है, या तो ये वाला 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, दो नंबर्स का प्रोडक्ट मुझे 0 करवाना है, दैट मीन्स कि या तो पहले वाला 0 हो जाए या दूसरे वाला 0 हो जाए। तो यहां से मेरे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1, राइट। लेकिन x इक्वल टू 0 के लिए मेरे ये फंक्शंस डिफाइन थे क्या, डिफाइन थे क्या, नहीं थे। दैट मीन्स दिस x इक्वल्स टू 0 विल नॉट बी पार्ट ऑफ आवर सॉल्यूशन। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशंस डिफाइन थे फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, 1 पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 1 इज द ओनली सॉल्यूशन वी हैव, राइट। अच्छा, मैथमेटिक्स के अंदर आपको कभी भी सॉल्यूशंस लिखने हैं, राइट, जैसे इंडिविजुअल पॉइंट्स लिखने हैं सॉल्यूशन, जैसे इसमें 1 आंसर है हमारा, राइट। हम मैथमेटिक्स के अंदर कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे 2, राइट, इनिशियल और एंड में, और उनके बीच में जो भी वैल्यू हमारा आंसर है, तो 1 आंसर है हमारा, तो x इज इक्वल्स टू 2 कर्ली ब्रैकेट और बीच में 1, राइट, क्लियर है। अच्छा, डिस्कस करते हैं कि हमने यहाँ पे x से x क्यों नहीं काटा। अगर हमने x से x को काट दिया होता तो ये कितना आ जाता, x इक्वल टू 1, राइट। इन दैट केस हम x इक्वल्स टू 0 को तो भूल ही जाते, राइट। वो तो लकीली हमारा इस क्वेश्चन के अंदर आंसर नहीं है, लेकिन अगर ऐसा अगर हो जाता, लेट्स से x इक्वल्स टू 0 हमारा आंसर हो जाता, तो हम यहाँ पे वो वाला सॉल्यूशन मिस कर देते, राइट। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, हमको x से x काटना नहीं है, बल्कि ब्रिंग इट ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अच्छा, कैसे बोल रहा हूं मैं, जब भी मैथमेटिक्स के अंदर आप एक चीज याद रख लो, ठीक है, पॉलिनोमियल्स आई होप आप समझते हो, जो लोग नहीं समझते मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, राइट। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो भी वेरिएबल है आपका, राइट, जैसे ax स्क्वायर प्लस b, यहाँ पे a और b अगर मैं कांस्टेंट बोल दूं और x को मैं वेरिएबल बोल दूं, राइट, इसमें जितने भी टर्म्स अपीयरिंग, x की पावर जितनी भी अभी अपीयर कर रही है, सब में यहाँ पे x की पावर नहीं है, तो यानी x की पावर कितनी है, 0 है, राइट। तो जितनी भी x की पावर अपीयर कर रही हैं वो क्या है, होल नंबर्स अगर हैं तो दैट विल बी अ पॉलिनोमियल। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया, राइट। अच्छा, तो जितना भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर होएगा, जैसे इस एक्सप्रेशन के अंदर x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, दैट मींस हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आएंगे, 2 सॉल्यूशंस आएंगे, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा तो 2 वैल्यू आते हैं, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे पास x का मैक्सिमम पावर 2 अवेलेबल होता है, राइट। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस थिंग। इसीलिए हम यहाँ पे अगर x को x से काट देंगे तो हम एक सॉल्यूशन मिस कर देंगे, राइट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, है ना। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू गाइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ते हैं quickly, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, है ना। अच्छा, अगर मुझे ये एक्सप्रेशन दिया है, लेट्स टेक दिस एन एग्जांपल, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बट आई वांट टू यू गाइज टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, राइट। log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 2 प्लस log ऑफ x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 2 पूरे के अंदर इज इक्वल टू व्हाट, राइट। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन इज द क्वेश्चन, राइट। ध्यान से देखो, बेस कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी हम क्या मान के चलते हैं, 10 मान के चलते हैं, राइट। चलो बेस तो सेम है, बीच में प्लस साइन भी लग रहा है, तो प्रॉपर्टी लगाने का समय आ गया, दैट मींस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इजंट इट, है ना। अच्छा, तो ये कितना हो गया, x/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 2, और इसी के प्रोडक्ट में x/2 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 2, राइट। ये लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, या फिर मैं बोलूं p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू। किसी को ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, अगर मैं x/2 को p बोल दूं, x/2 को p बोल दूं और q बोल दूं रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 2 को, राइट। तो ये एक्सप्रेशन p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू लिखा हुआ है, तो वो कितना होता है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इजंट इट। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको,
what I can write? X square by 4 minus x square minus 4y by 4 है ना. How can I simplify this? Log LCM ले लिया 4 x square minus x square minus minus प्लस हो जाएगा है ना. तो ये x square से x square कट जाएगा और हमारा एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा गाइस? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा गाइस? log of y. 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा है ना. सो दिस एक्सप्रेशन इज सिंप्लीफाइड. आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो. आगे बढ़ते हैं. बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा इजी कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको लगे कि यार क्वेश्चन तो इजी से ही है, राइट. जस्ट रिमेंबर द प्रॉपर्टीज और हमें ये पता होना चाहिए कि हम उनको अप्लाई कहां कर रहे हैं, राइट. अच्छा, इस चीज को सिंप्लीफाई करके बताओ मुझे. व्हाट इज दिस थिंग? इस चीज को सिंप्लीफाई करके बताओ ताकि अपनी सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज हो जाए, राइट. माय एम इज कि आपकी सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज हो जाए. ये 4 टू द पावर -3 इनटू, राइट, ये पूरा पावर में है इसकी, ये पूरा पावर में है इसकी. कैसे सिंप्लीफाई करें इसको? ये प्रॉपर्टी तो सर ने बताई थी. आई होप आप सभी को याद होगी जो भी मेरे सेशंस कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं. क्या प्रॉपर्टी? कि अगर लिखा हो a टू द पावर log b बेस c, तो इस b को यहां पे ले आओ और इस a को ऊपर भेज दो, यानी आई कैन रीराइट दिस एक्सप्रेशन एज दिस, इजंट इट? अच्छा, लेकिन यहां पे तो ये -3 भी है. मैं क्या करूं? मैं इसको पहले यहां पे भेज दूं पावर में, इसके पावर में भेज सकता हूं. कौन सी प्रॉपर्टी से? log ऑफ a टू द पावर m बेस b. अगर ये लिखा हो तो आई कैन राइट दिस थिंग एज दिस, इजंट इट? मैंने आपको बताई थी वाली प्रॉपर्टी. तो आई कैन रीराइट दिस थिंग एज 4 टू द पावर log 3 टू द पावर -3 टू द बेस 2, इजंट इट? अच्छा, अब ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या? अगर इसको लेट से मैंने x बोल दिया तो ये x नीचे आ जाएगा और ये 4 ऊपर चले जाएगा. तो आई कैन राइट दिस थिंग एज x टू द पावर log 4 बेस 2. और ये तो मुझे पता है 2 का क्या पावर करूं, 4 आ जाएगा 2. तो ये x स्क्वायर लिखा हुआ है. अच्छा, हमने x किसको बोला? हमने x बोला 3 टू द पावर -3, राइट, है ना. 3 टू द पावर -3. अच्छा, ये x का होल स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, है ना. इजंट इट राइट? अच्छा, ये चीज क्या लिखी हुई है? ये चीज क्या लिखी हुई है? 3 टू द पावर -3 इंटू 3 टू द पावर -3, है ना. बेस सेम हो तो पावर क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. तो ये कितना आ जाएगा? 3 टू द पावर -6, राइट. अच्छा, मैंने इसको ध्यान से देखना जरा, मैंने इस चीज को ऐसे क्यों लिखा? मैंने इस चीज को ऐसे इसीलिए लिखा क्योंकि कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर अगर ऐसा लिखा हुआ है कभी, राइट, कुछ लोग इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. इन दोनों एक्सप्रेशन बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं. यहां पे क्या है? ध्यान से देखना, a की पावर m की होल पावर n, राइट. यानी कि इसका मतलब क्या है? a की पावर m इंटू a की पावर m इंटू a की पावर m कितने टाइम्स? n टाइम्स, है ना. ये मतलब समझे हम इसका? a की पावर m की होल पावर n, की होल पावर n. यानी कि ये अगर इसको मैंने लेट से x बोल दिया तो x की पावर n यानी क्या? x इंटू x इंटू x n टाइम्स, है ना, n टाइम्स. सेम चीज करी हमने तो a की पावर m इंटू a की पावर m इंटू a की पावर m n टाइम्स हो गया ये. अच्छा, दिस एक्सप्रेशन इज डिफरेंट. यहां पे क्या है? a की पावर m और m की पावर n, m की पावर n, राइट. एक एग्जांपल लेते हैं ताकि इन दोनों चीजों को क्लियर कर सकें, राइट. लेट्स टेक 3 टू द पावर 2 टू द पावर 2, है ना. एक ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, 3 की पावर में 2 है और 2 की पावर में 3 है, राइट. एक दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं कि 3 की पावर 2 और उसकी पूरे की पावर, इस पूरे की पावर 3, राइट. पहले क्या करते हैं? ऊपर से पावर सॉल्व करते हुए आते हैं, राइट. तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 इज 8. 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8, राइट. सो दिस एक्सप्रेशन इज 3 टू द पावर 8, राइट. अच्छा, इसकी बात करते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? 9 टू द पावर 3, 9 टू द पावर 3, है ना. ये ब्रैकेट लगा हुआ है, दैट मींस पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे 9 टू द पावर 3, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी कि
3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, तो 3 की पावर बेस सेम है तो पावर एड ऑन हो जाएगी। तो दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट। बहुत सारे लोगों को इस चीज में डाउट होता है, बट आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू देम नाउ, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू। Okay, let's take another simple example, right? Let's take another simple example. Log to the base 4, log to the base 3, log to the base 8 base 2 is equal to what? Right? अच्छा, मैंने लॉगरिथम में क्या समझा है कि यहाँ पे भी कुछ लिखा होना चाहिए और बेस में भी कुछ लिखा होना चाहिए, राइट? अच्छा, इस लॉग के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे फ्रंट में एक ही जगह, दिस होल एक्सप्रेशन, और इस वाले लॉग के लिए एक ही जगह पे क्या लिखा हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन, राइट। वी विल रीड दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लाइक दिस, नंबर 1, राइट। तो अब हम इस ऐसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले वाला लॉग, सबसे आगे वाला लॉग, यानी इसको पहले सिंप्लीफाई करते हुए आते हैं। व्हाट इज लॉग 8 टू द बेस 2? 2 का क्या पावर करें कि 8 आ जाए? 3, isn't it? So we can rewrite this expression as log to the base 4 or log 3 to the base 3, right? लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 3 आ गया, इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, right? अच्छा, आगे देखते हैं। log 3 to the base 3 is what? 1. तो I can rewrite this expression as 1, ब्रैकेट लगा दिया, है ना। What is log 1 to any base? क्या होता है? 0. So the value of this expression is 0. Right? Clear है? क्या किया हमने? बहुत सारे logs दिए हुए थे, right? पहले तो हमने ये देखा कि log के यहाँ पे भी कुछ लिखा होना चाहिए और यहाँ पे भी कुछ लिखा होना चाहिए। तो initially question was like this. क्या था question? log this and log this was written, right? That means कि हम बाहर से चले, सबसे पहले हम बाहर से चले। हमने देखा कि इस लॉग के लिए ऊपर की जगह, एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, राइट। हमने इस लॉगरिथम, सबसे बाहर वाले लॉगरिथम को पहले ऊपर वाला वैल्यू दे दिया, राइट, एक ही जगह वाला एक्सप्रेशन दे दिया। अच्छा, फिर अंदर वाले लॉग की तरफ है, तो अंदर वाले लॉग में इस वाले लॉग के लिए एक ही जगह क्या लिखा हुआ है, ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसको हमने इसको अलॉट कर दिया, राइट। नेक्स्ट नंबर 2, इसको सॉल्व कैसे किया हमने? सॉल्व करने के लिए हम इधर से चले, राइट, अंदर से, जो अंदर वाला है उसको सबसे पहले सॉल्व किया। कैसे किया? log 8 to the base 2 कितना होता है? 3 होता है। 2 का क्या पावर करें कि 8 आ जाए, राइट, है ना, तो 3 आ गया। तो फिर हमने इस एक्सप्रेशन की जगह, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह क्या लिख दिया गाइस? 3 लिख दिया, है ना। थोड़ा सा जो मैं बातें बोल रहा हूं अगर आप उनको पकड़ लेंगे तो यू विल बी एबल टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स इजीली, राइट। तो हमने log 8 टू द बेस 2 की जगह 3 लिख दिया, राइट। तो फिर ये वाला कितना आ गया एक्सप्रेशन? log of 3 टू द बेस 3, isn't it? और फिर ये वाला ब्रैकेट लगाया और log टू द बेस 4। फिर अगेन अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, तो log 3 टू द बेस 3 इज 1 और टू द बेस 4, बाहर वाले का बेस 4 था, तो द आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। आई होप यू गाइस गॉट द कॉन्सेप्ट कैसे करना है। जिनको समझ में नहीं आया, अगेन गो थ्रू द प्रॉब्लम, वीडियो पॉज करके देखेंगे, डेफिनेटली समझ में आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, राइट, एग्जांपल, है ना। अगर मुझे दिया हो 4 टू द पावर, ये 4 के पावर में चल रहा है, राइट, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ, और इस e के पावर में, पहले तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है पूरा जो भी मैं लिखना चाह रहा हूं ये 4 के पावर में है, राइट, और जो भी अब लिखने वाला हूं वो e के पावर में, ठीक है, e के पावर में। कैसे? ln 7x + 1। आई होप आप सभी को क्वेश्चन तो सबसे पहले क्लियर हो गया। सॉल्व फॉर x, क्या बोला मैंने? एक तो सबसे पहले ये 4 बेस में है और ये सारा उसके पावर में चल रहा है, राइट। फिर मैंने लिखा log e टू द बेस 4, log e टू द बेस 4 ऐसे लिखा, और e की पावर में अगेन ये वाला एक्सप्रेशन लिखो। इज इट क्लियर, है ना। अच्छा,
मैंने बोला अभी अभी पिछले एग्जाम्पल में भी बोला कि जब इतने सारे लॉग 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 चल रहे हैं तो हम सबसे अंदर वाले से सॉल्व करके आते हैं, सबसे अंदर वाले से सॉल्व करके आते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले सॉल्व करके आते हैं। कुछ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या इस एक्सप्रेशन के अंदर? ध्यान से देखना, अगर a टू द पावर log b बेस c होता था तो क्या मैं इसको b टू द पावर log a बेस c लिख सकता था, है ना? तो ये प्रॉपर्टी अगर मैंने यहां पे लगा दी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए तो कैन आई राइट ये एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या? 7x प्लस 1 टू द पावर ln, और ये e ऊपर चले जाएगा, है ना? ln अगर लिखा हुआ है तो दैट मीन्स log के अंदर बेस e होगा। दैट मीन्स कि दिस इज इक्वल टू व्हाट? 7x प्लस 1 टू द सेम बेस log e टू द बेस e, और ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा गाइस? 1 हो जाएगा, है ना? तो ये एक्सप्रेशन कितना आ गया? 7x प्लस 1, इजंट इट? आ गया? आगे कि नहीं आ गया, है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा तो सिंप्लीफाई कर दिया। कैसे किया? हम सबसे अंदर वाले लॉगरिथम से आए गाइस, अगेन आई एम टेलिंग यू, सबसे अंदर वाले लॉगरिथम से आए। तो log टू द बेस 4, और ये पूरे एक्सप्रेशन की जगह हमने वैल्यू क्या निकाल लिया? 7x प्लस 1। अगेन कैन आई यूज द सेम प्रॉपर्टी, ये वाला, है ना? अगर मैंने कर दिया यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 7x प्लस 1 log 4 टू द बेस 4 विच विल बी अगेन इक्वल टू 3, है ना? तो कितना आ गया? 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, इजंट इट? तो 7x इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया गाइज? x का वैल्यू आ गया 2/7। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया गाइज, है ना? आ गया। अच्छा, चलो ध्यान से देखते हैं इस एक्सप्रेशन को, ध्यान से देखते हैं इस एक्सप्रेशन को, राइट? मैंने आपको एक, अच्छा ये वैल्यू आ तो गया, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में मैंने चेक किया कि मेरे ये वाला एक्सप्रेशन किन किन वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइन है? क्या मैंने इस चीज को इस क्वेश्चन के अंदर किया? नहीं किया, राइट? क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पावर्स इतने सारे चल रहे हैं, राइट? इतने सारे पावर्स चल रहे हैं कि अगर मैं ये देखना चाहूं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि ये किन के वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइंड है, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम हो जाएगा, मुश्किल भरा काम हो जाएगा। तो व्हाट आई डू, पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया और जो भी मेरी वैल्यूज ऑफ x आई मैंने इसको इस क्वेश्चन के एक्सप्रेशन के अंदर डाल के देख लिया कि क्या ये चीज मेरी डिफाइन हो रही है कि नहीं, यानी इस वैल्यू ऑफ x के लिए ये एक्सप्रेशन मेरा, एंटायर एक्सप्रेशन मेरा डिफाइन है या नहीं, ये देखने जा रहा हूं मैं। अभी यहां तक करके मैं नहीं बोल दूंगा कि दिस इज द फाइनल आंसर, राइट? आई होप आप सब लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर लिखा हुआ है log a टू द बेस b, अगर ये चीज लिखी हुई है तो ये चीज पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी? बताया था। जिन लोगों को ये चीज पता नहीं है, अगेन आई एम टेलिंग यू, गो थ्रू द सेशंस, एवरीथिंग इज देयर, everything is there. Why I am telling this, you will get to know, right? Positive कब होता है? When both of these, यानी A और B अगर same side of A and B, both अगर same side of 1 अगर हैं, यानी या तो दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं, तो ये एक्सप्रेशन जो आएगा that will be positive. अच्छा, अब जब ये दोनों A और B, एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है, कोई भी, राइट? चाहे A 1 से बड़ा हो, B 1 से छोटा हो, या फिर B 1 से बड़ा हो और A 1 से छोटा हो, राइट? दोनों 1 के इधर उधर है, तो इन दैट केस दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू विल कम आउट टू बी नेगेटिव, राइट? इतना मैंने बताया। तो देखना इस चीज को मैं यूज करने कहां जा रहा हूं, देखना है ना, ध्यान से देखना। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? 4 टू द पावर log टू द बेस 4 e लिखा हुआ है और e के पावर में चल रहा है ln 7x प्लस 1। ये x का वैल्यू 2/7, अगर मैंने x का वैल्यू अगर 2/7 यहां पे मैंने डाला तो व्हाट आई विल गेट? 7 × 2/7 प्लस 1, यानी मुझे कितना मिल जाएगा इसकी जगह?
इस एक्सप्रेशन की जगह पूरा कितना मिल गया, 3 मिल गया, राइट। तो आई कैन रीराइट दिस एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x एज 4 to the power log to the base 4 e to the power ln 3, e to the power ln 3 लिख सकता हूं, है ना। अच्छा, ln 3 जो भी होगा, ln 3 ln लिखा हुआ है तो log के बेस में तो e हो गया, और ln 3 को आई कैन राइट एज log 3 to the base e, राइट। e का वैल्यू भी मैंने आपको सेशंस के दौरान बताया था दैट इट इज एन irrational number whose value comes out roughly to be 2.71 something something something, right? Irrational numbers are non-terminating and non-repeating nature, right? लेकिन मैंने अभी अभी बताया कि अगर ये दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी हैं, ये और ये, यानी दोनों अगर 1 के सेम साइड है तो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, दैट मींस ln 3 का वैल्यू मेरा पॉजिटिव होगा, राइट। तो मैं लिख सकता हूं इस एंटायर एक्सप्रेशन को 4 to the power log, और सेम प्रॉपर्टी अगर मैंने लगा लिया, ये वाला प्रॉपर्टी अगर मैंने लगा लिया, तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं गाइस, 3 लिख सकता हूं। e to the power ln 3 को मैंने क्या किया, e to the power ln 3 को आई हैव रिटन, ध्यान से देखना गाइस, मैंने सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया और लिख दिया 3 to the power ln e हो गया 1। तो मैंने इस एंटायर एक्सप्रेशन की जगह, किस वाले एक्सप्रेशन की जगह, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह, इस यही था एक्सप्रेशन तो अपना, खैर यही था, राइट। इसकी जगह मैंने लिख दिया 3। जिसको समझ में नहीं आया ध्यान से देखो इस चीज को, मैंने ये किया e की पावर ln 3 की जगह मैंने लिख दिया 3 to the power ln e, राइट। अच्छा, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, दैट मींस इसका आउटपुट 1 से बड़ा आएगा, दैट मींस ये भी एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अच्छा, ये वंस ये डिफाइन हो गया मेरा एक्सप्रेशन, इसके बाद तो लॉग है ही नहीं, इसके बाद तो लॉग है ही नहीं, राइट। दैट मींस कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ x मेरा ये जो एंटायर एक्सप्रेशन था दैट वाज डिफाइंड, और मैंने इसको सॉल्व करके आंसर लेके आया हूं, और डिफाइन तो ये है उस चीज पे, दैट मींस कि नाउ आई कैन डेफिनेटली से कि दिस इज माय सॉल्यूशन, राइट। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, अगेन गो थ्रू दिस प्रॉब्लम, आई एम डैम श्योर कि दे विल बी एबल टू गेट इट, राइट। मैंने पूरी कोशिश करी है, ऑल्दो आई एम हैविंग अ पेन इन माय थ्रोट, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आप लोगों को इस चीज को एक्सप्लेन कर सकूं क्लियरली, राइट। लेकिन जिनको समझ में नहीं आया है, अगेन गो थ्रू दिस प्रॉब्लम, आई होप वो समझ जाएंगे, और अगर नहीं समझ में आता है देन ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, और अगर एक बारी में समझ में नहीं आ रहा है तो अगेन गो थ्रू दिस थिंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हिच आई हैव जस्ट डिस्कस्ड, राइट। बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए लॉगरिथम अगर आप इन चीजों को भी सीख गए, राइट गाइस। आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़े। अच्छा, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए कभी भी मैंने डेसिमल फॉर्म को कंसीडर नहीं किया, तो कुछ लोगों को ये डाउट आया कि सर ये डेसिमल्स के लिए भी डिफाइंड है क्या। तो डेसिमल्स आपको मैं बता दूं कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, मैंने क्या बोला, log a to the base b को अगर डिफाइन होना है तो a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। b जो है वो 1 भी नहीं होना चाहिए। और रियल नंबर्स, आई होप पॉजिटिव रियल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं, हर वो नंबर जो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा 0.1 भी है, 0 से बड़ा 0 से बड़ा 0.111111 भी है, राइट। so this is also a real number. तो logarithm is defined for positive decimal numbers also, number 1। अच्छा, अगर मुझे ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.6 बार। कितना होता है 0.6 बार, 0.6 बार इज अगेन 2/3, तो log 2/3 to the same base 2/3 is equal to 1, राइट। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग कि डेसिमल्स के लिए भी डिफाइंड है क्या, मैंने इस प्रॉब्लम को करवाया है। आई होप आपको 0.6 बार को रैशनलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना आता होगा, राइट। 0.6 बार, राइट। व्हाट इज दिस इक्वल टू 0.666666, 6 बार बार ही आ रहा है डेसिमल के बाद, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी ये खत्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीटिंग है। और रैशनल नंबर्स कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, राइट। रैशनल नंबर्स कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होने चाहिए।
अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो गए, इन दैट केस वो सारे नंबर इरेशनल होंगे। आई होप यू नो दिस मच, राइट। आगे बढ़ते हैं क्विकली। एक चीज और आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर, क्या ये दोनों चीजें सेम है जो मैं अभी लिखने वाला हूं? मैंने आपको काफी बारी ये चीज पूछी भी है सेशंस के दौरान, बट आई स्टिल यू नो आई वांट यू पीपल टू आंसर दिस। क्या ये दोनों चीजें, दीज नंबर वन दिस एंड दिस, आर बोथ ऑफ दीज थिंग्स सेम, है ना? क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। पहली चीज तो कि ये जो भी लिखा हुआ है ये एक साथ है, और ये जो भी लिखा हुआ है ये एक साथ है, और ये दोनों लॉगरिथम इंडिपेंडेंट है, और बीच में कहीं प्लस है, राइट। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं कि सर ने ये क्या लिख दिया, मैं तो इसको ऐसे समझूंगा, इसीलिए मैंने क्लैरिफाई कर दिया, राइट। अच्छा, तो लोग धड़ल्ले से ये प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, log a टू द सम बेस p प्लस log b टू द सम बेस p इज इक्वल टू log a इंटू b टू द सेम बेस p, राइट। लेकिन इस चीज में वो ध्यान किस चीज का नहीं रखते हैं कि पहले तो ये a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ पे जो b है दैट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, देन ओनली ये मेरे लॉगरिथम्स डिफाइन होंगे, तभी तो मैं ये प्रॉपर्टी लगा सकूंगा गाइस, है ना। तो दैट मीन्स व्हाट कि ये वाला एक्सप्रेशन तो मेरा कब डिफाइन है, फॉर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स x ग्रेटर देन -1, और ये वाला एक्सप्रेशन मेरा कब डिफाइंड है, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 1। यानी क्या समझा मैं, क्या समझा गाइस, में क्या समझा कि ये दोनों एक्सप्रेशन जब डिफाइन होंगे इंडिविजुअली, तभी तो ये पूरा एक्सप्रेशन डिफाइन होगा। ये पूरा एक्सप्रेशन कब डिफाइन होगा, जब ये वाली वैल्यूज, जब ये वाला एक्सप्रेशन भी डिफाइन हो जाए और ये वाला भी एक्सप्रेशन डिफाइन हो जाए, राइट। तो ये वाले दोनों, ये बोल रहा है कि पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो डिफाइन होगा जब x -1 से बड़ा हो जाए, राइट। नंबर लाइन तो आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, नंबर लाइन पता होगा, है ना। ये अगर नंबर लाइन है तो -1 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा। तो -1 से बड़ी वैल्यूज जितनी भी है, -1 से बड़ी वैल्यूज, उनके लिए ये पहला वाला एक्सप्रेशन डिफाइंड है, राइट। पहला वाला एक्सप्रेशन इज डिफाइंड, पहला वाले को आई एम मार्किंग बाय द ब्लैक लाइन, इस वाले एक्सप्रेशन को मैंने इस लाइन के साथ मार्क कर रहा हूं कि इन सभी वैल्यूज ऑफ x के लिए ये डिफाइंड है, राइट। दूसरे वाला क्या बोल रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए। दूसरे वाला एक्सप्रेशन कौन सा है, ये वाला एक्सप्रेशन, राइट, दिस वन, ब्लू वन। तो ये वाला क्या बोल रहा है, 1 से बड़ी वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइन है, राइट। दोनों की कॉमन वैल्यूज जब लेंगे तभी तो ये पूरा एंटायर एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा। इतना तो आप सभी लोग ग्रास्प कर चुके होंगे अब तक, है ना। तो दोनों की कॉमन वैल्यूज क्या आ रही हैं, x ग्रेटर देन 1, राइट। लेकिन ये एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है कि x स्क्वायर -1 शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। दैट मीन्स x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 1, राइट। हम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना भी सीखेंगे इन few sessions which I will be taking on in under mathematics only, right. inequalities यानी जहां पे भी ऐसे सिंबल आ जाते हैं, राइट, जहां पे भी ऐसे सिंबल्स आ जाते हैं, हम इनको सॉल्व करना भी सीखेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ आई एम गिविंग अ हिंट कि x स्क्वायर 1 से बड़ा होना चाहिए। लेट्स से मैंने x का वैल्यू 2 डाल दिया मैंने, ठीक है। तो 2 डाल दिया तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो 4 1 से बड़ा होगा, यानी 2 स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1, नो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने -2 डाल दिया, x की जगह -2 डाल दिया, तो क्या -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है, दैट मीन्स -2 का स्क्वायर भी 1 से बड़ा होगा, है ना। दैट मीन्स कि ये चीज जो है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये कुछ नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी डिफाइंड है, कुछ नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी डिफाइंड है, वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। आई एम राइटिंग इट इन हिंदी but I am saying it in English again so that people can understand कि this expression is defined for some negative values of x also. एक वैल्यू हमने देख लिया, I'll be explaining in further sessions कि हम इस तरीके की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन as of now हमने ये देख लिया कि ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए भी डिफाइंड है, और ये वाला तो सिर्फ ग्रेटर देन 1 के लिए भी डिफाइन हो रहा था, राइट। सो अगर ये दोनों एक्सप्रेशंस हर एक वैल्यू ऑफ x जो इधर डिफाइन हो रहा है, जो इसको इधर डिफाइन कर रहा है, राइट, इस एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रहा है,
और इस एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रहा है जो भी x, वो दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों एक्सप्रेशंस कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, राइट? सिमिलर नहीं हो सकते। सिमिलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? सिमिलर एक्सप्रेशंस वो होते हैं कि जो भी वैल्यू मैं यहां पे डाल सकता हूं, मान लो इनपुट, राइट, यानी कि जिन वैल्यूज ऑफ x के लिए ये फंक्शंस डिफाइन हो, अगर ये दोनों सिमिलर है तो ये वाला फंक्शंस भी उन्हीं, ये वाला एक्सप्रेशन भी कहूं तो, फंक्शन में कंफ्यूज हो रहे हो तो एक्सप्रेशन मान लो, एक्सप्रेशन यानी x का एक्सप्रेशन, x आ रहा है अंदर, हाँ, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी उन्हीं वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइन हो। ऐसा नहीं हो रहा है, दैट मींस ये दोनों एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट नहीं है। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? दो फंक्शंस अगर, दो एक्सप्रेशंस, दो x के एक्सप्रेशंस अगर इक्वल हैं, फंक्शन बोलू एक्सप्रेशन बोलू, अभी एक ही बात, सिंपल सी चीज है, राइट? एक ही चीज है, एक ही सिंपल सा फंडा है कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन मैं बोलूंगा कब इक्विवेलेंट है, जब ये वाला एक्सप्रेशन जिन जिन वैल्यूज के लिए डिफाइन है, उन्हीं सभी वैल्यूज के लिए अगर ये वाला फंक्शंस भी डिफाइन है, एक्सप्रेशन भी डिफाइन है, तो कहूंगा कि ये दोनों एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट हैं, राइट? क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, है ना? लास्ट एग्जांपल करते हैं आज का, थोड़ा सेशन लंबा हो गया, बट आई होप आप लोगों ने काफी सारे कॉन्सेप्ट्स ग्रैस्प किए आज, राइट? इफ a is equal to log 2, b is equal to what? b is equal to log 3, b is equal to log 3 and c is equal to log 7, right? Also this thing is given to me, क्या? 6 to the power x is equal to 7 to the power x plus 4, then x का वैल्यू क्या होगा, right? I'm giving you 4 options. A option is 4b to the 4b divided by c plus a minus b. There is some difficulty in this marker, right? So I hope आपको चीजें क्लियर नजर आ रही हैं, है ना? थोड़ा सा कोऑपरेट करना गाइस, आज वैसे भी आप लोगों को काफी सारा कोऑपरेशन करना पड़ गया है। आई होप मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप तक मेरी आवाज क्लियरली आए, राइट? दो आई एम हैविंग अ पेन, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप तक मेरी आवाज अच्छे से आए, राइट? डी ऑप्शन में दे रहा हूं 4a डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन। अगर a का वैल्यू ये दिया हुआ है, b का वैल्यू ये दिया हुआ है, c का वैल्यू ये दिया हुआ है, एंड ऑल्सो दिस एक्सप्रेशन, राइट? तो एक चीज तो मैं अब तक क्लियरली समझ गया कि जब भी कभी मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स दी हुई रहे तो मुझे उनको पावर से हटाना हो, दिस इज x प्लस 4, दिस इज x प्लस 4। तो इस पावर को अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन में लाना है तो मैं क्या करता हूं? लॉग लेता हूं दोनों तरफ, राइट? तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो आई कैन राइट दिस एज टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, तो आई कैन रीराइट दिस एज दिस, लिख सकता हूं मैं, है ना? अच्छा, फिर प्रॉपर्टी कि ये वाला आगे आ जाएगा, यहां वाला आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? x टू द पावर log 6 इज इक्वल टू log 7, है ना? और मल्टीप्लीकेशन में, अच्छा इसी के मल्टीप्लीकेशन में मैं थोड़ा पीछे लिख रहा हूं, है ना? लेकिन मतलब समझ जाना कि सेम ही बात है, राइट? मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, आगे भी लिखते हैं तो मल्टीप्लीकेशन ही करते हैं, है ना? अच्छा, मुझे x का वैल्यू किसके टर्म्स में चाहिए? a, b और c के टर्म्स में। a का वैल्यू ये है, b का ये है और c का ये है, राइट? तो ध्यान से देखें, अगर क्या log 6 को मैं कुछ लिख सकता हूं? log 6 को मैं अगर मैं लिख दूं log 2 into 3, है ना? तो व्हाट आई गेट? ध्यान से देखो, क्या मुझे मिला? क्या मिला मुझे? log 2 into 3, सेम प्रॉपर्टी, कौन सी वाली? मल्टीप्लीकेशन को अगर लॉगरिथम में समेशन में डिवाइड करना है तो क्या मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको ऐसा लिख सकता हूं? log 2 प्लस log 3 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इन दोनों को प्लस किया है, बीच में प्लस आ रहा है, सेम बेस है, तभी तो 2 into 3 होगा, है ना? तो आई कैन राइट दिस थिंग एज दिस और नॉट, डू लेट मी नो। क्लियर है इतना, है ना? अच्छा, अब x कॉमन ले लेते हैं, राइट? इधर से ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट? दो टर्म इधर से आएंगे, तो जो x वाला टर्म है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख के आ रहा हूं और ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मेरे पास। ध्यान से देखना, बहुत ही इजी स्टेप है, लेकिन मैं स्किप कर रहा हूं इसको ताकि थोड़ा सा आप दिमाग लगा लें, राइट? थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो काम हो जाएगा। आई थिंक यहां तक सभी क्लियरली पहुंच गए होंगे, राइट? जो भी नहीं पहुंचे, आई एम टेलिंग देम
पॉज करो वीडियो को और समझ लो, राइट। तो x कितना आ गया, x आ गया 4 इंटू log टू द बेस log 7, राइट, डिवाइडेड बाय log 2 प्लस log 3 माइनस log 7। अच्छा, जो भी वैल्यूज है, अब log 7 क्या है, log 7 कितना है, log 7 है c as per the equation, right? तो I can write this x as 4 into c upon log 2 कितना है a, log 3 कितना है b और log 7 तो c है। So this is the answer। कौन सा ऑप्शन है guys? B is the option। I hope the things which we have covered today you guys are clear with those things, right? मैंने आप लोगों के लिए काफी सारी मेहनत करी है आज, right? एंड आई होप मैं आप लोगों को सारी चीजें क्लियरली समझा पाया हूँ। जस्ट डू लेट मी नो अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, राइट, बिकॉज आई हैव टेकन द एंटायर सीरीज एंड माय एम वाज टू यू नो कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का जो आइडिया लग जाए लॉगरिथम्स का, राइट। सो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट, लेकिन स्टिल यू आर हैविंग डाउट्स इन एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, जस्ट interact in the comment section as well guys, right? अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो सकता है बहुत सारे लोगों को और भी आ रहा हो, लेकिन just out of shyness they are not asking those doubts, right? कि कोई क्या सोचेगा। guys, अगर आप डाउट्स नहीं पूछोगे, अपने डाउट सॉल्व नहीं करोगे तो आप कभी भी सीख नहीं पाओगे, राइट? सीखेगा वही आदमी जो ऑनेस्टली मेहनत करेगा, और जो भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है, अगर वो पूछेगा और उस चीज को सीखने की इच्छा रखेगा, then only he or she will be able to grasp that particular thing, right? So I hope you guys enjoyed today's session. It was a bit painful, लेकिन I enjoyed the session. I hope you guys also enjoyed the session and grasped the concepts which I discussed today, right? Thank you so much for